بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلمیٰ جبین ہے اور میں آپ کو آفاق آن لائن لرننگ پلیٹ فارم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آفاق اسلامیات سن سیریز جماعت پنجم ٹرم 1 یونٹ 2 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو سے جو لوگ مستفید ہو سکتے ہیں ان میں شامل ہیں طلباء، اساتذہ اور والدین۔ اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک اہم بات جو میں آپ کو آفاق کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ منصوبہ بندی کامیابی کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی چیز اگر پلاننگ کر کے کی جائے تو اس کے بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ آفاق نے اکیڈمک کیلنڈر کی شکل میں تعلیمی سال کی منصوبہ بندی کر دی ہے۔ ابھی آپ اسکرین پر ایک کوئک اوور ویو دیکھ رہے ہیں آفاق اکیڈمک کیلنڈر کا، جو کہ 3 ٹرمز اور 6 یونٹ پر مشتمل ہے، یعنی کہ فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم اور تھرڈ ٹرم، اور ہر ٹرم 2 یونٹس پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر ایک اکیڈمک کیلنڈر میں 3 ٹرمز اور 6 یونٹ ہیں۔ اب آپ اسکرین پر ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 2 دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک ٹرم میں 2 یونٹ ہیں، ایک یونٹ میں 6 ہفتے ہیں اور ایک ہفتے میں 3 سبقی منصوبہ ہیں۔ یہ فرسٹ ٹرم یونٹ 2 ہے اور اس میں پڑھائے جانے والے اسباق کی تعداد 5 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 2 کو 5 ہفتوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جبکہ 6واں ہفتہ اسسمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں پر آپ پڑھائے گئے تصورات کا جائزہ لیں گے۔ نہ صرف اکیڈمک کیلنڈر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ ویٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے آفاق نے ایک سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل بھی پرووائڈ کیا ہے، جس میں ہر مضمون کی ویٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے پیریڈز مختص کیے گئے ہیں۔ یہاں پر اسلامیات کے مضمون کو 3 پیریڈز لیے گئے ہیں۔ اسکول انتظامیہ اس ٹائم ٹیبل سے رہنمائی لے سکتی ہے۔ اب ہم ویک 3 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ٹرم 1 یونٹ 2 کا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس ایل اوز جو ہم کور کریں گے، 2 ایس ایل اوز ہمارے عیدین سے متعلقہ ہیں، اور اگر ہم تصورات کو دیکھیں تو یہاں پر ہم عیدین کے معاشرتی فوائد جانیں گے۔ اس کے بعد ہم سیرت طیبہ کا ایک نیا سبق شروع کریں گے، جو کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہے، اور اس میں ہم اسراء اور معراج کا معنی و مفہوم جانیں گے، اور بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کا مطلب بھی سمجھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ایس ایل اوز کو کور کرنے کے لیے لیسن پلانز بھی دیے گئے ہیں۔ اساتذہ کرام ان لیسن پلانز سے رہنمائی لیتے ہوئے بہتر طور پر ان حاصلات تعلم کی تدریس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 3 ایل پی نمبر 1 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں عیدین سے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد سے آگاہ ہو سکے اور عیدین اسلامی تہوار کی اصل روح کے مطابق منا سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کون سا متن شامل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 32 ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلٹس کی شکل میں عیدین کے معاشرتی فوائد اور ان کی اہمیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس متن کو پڑھیے اور اس کے بعد ہم سرگرمی کی شکل میں ان فوائد اور اس کی اہمیت کو ریوائز کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی سرگرمی ہے کہ عیدین کے معاشرتی فوائد کیا ہیں۔ مساوات اور بھائی چارے کی نشانی ہے، اس سے اخلاقی اقدار کو فروغ ملتا ہے۔ جب ہم رشتہ داروں سے ملتے ہیں تو ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینے کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ عیدین جو ہے وہ معاشرتی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہیں۔ عزیز طلبہ، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ عیدین کی معاشرتی فوائد کو نکات کی صورت میں اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارا سبق عیدین مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے مشق میں کون سے سوالات دیے گئے ہیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ نے اس سبق کو کس حد تک سمجھا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشق میں کون سے سوالات شامل کیے گئے ہیں، تاکہ ہم اندازہ کر سکیں کہ صفحہ نمبر 31 اور 32 پر دیے گئے متن کو آپ نے کس حد تک سمجھا ہے۔ کچھ سوالات آپ نے خود حل کرنے ہیں، جیسے کہ سوال نمبر 1 اور 2، ان کے جوابات آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے، اور کچھ سوالات ابھی ہم مل کر یہاں پر حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، نماز عید ادا کی جاتی ہے، کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ نماز عید ادا کی جاتی ہے سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد۔ بے دیکھیے، نماز عید کی رکعات ہوتی ہیں 2، تو یہاں پر الف درست ہے۔ جیم دیکھیے، نماز عید میں نہیں کہی جاتی تکبیر، اقامت، تسبیح یا تحلیل، تو کیا نہیں کہی جاتی؟ اقامت نہیں کہی جاتی۔ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے کون سے مہینے میں؟ شوال کے مہینے میں۔ اور ہے دیکھیے، عید کے خطبے میں لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے دینی مسائل کی، بالکل ٹھیک۔ اب ہم سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں کہ اس میں
हमारे से कौन से सवालात पूछे गए हैं? दुरुस्त बयान पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ देखिए, नमाज ईद के लिए 2 अज़ानें दी जाती हैं, क्या ये दुरुस्त है? ये गलत है क्योंकि नमाज जुमा के लिए 2 अज़ानें दी जाती हैं। बे देखिए, ईद उल अज़हा के मौका पर सदका फ़ितर अदा किया जाता है, क्या ये दुरुस्त है? ये बयान भी गलत है क्योंकि सदका फ़ितर ईद उल फ़ितर के मौका पर अदा किया जाता है। जीम देखिए, नमाज ईद की हर रकअत में ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं, दुरुस्त। नमाज ईद घरों में अदा करनी चाहिए, ये बयान गलत है। और हे देखिए, फ़ितराना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो ये दुरुस्त है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ सरगर्मियाँ भी दी गई हैं जिसको आपने अपने असातिज़ा या वालिदैन की मदद से हल करना है। जैसे कि आप ये जानें कि इंटरनेट की मदद से मालूम करें कि दीगर इस्लामी ममालिक में ईदैन के त्यौहार किस तरह से मनाए जाते हैं, और इससे मुतल्लिक आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं या एक बुकलेट भी बना सकते हैं। इसी तरह से आपने बाकी सरगर्मियाँ भी हल करनी हैं। तो आइए देखते हैं कि अब हम कौन सा सबक शुरू करने जा रहे हैं। ये है टर्म 1 यूनिट 2 वीक 3 LP नंबर 2, और यहाँ पर हम जानेंगे इसरा और मेराज का माना व मफ़हूम, सफ़र मेराज के वाक़या से आगाह होंगे, और इसके साथ हम देखेंगे कि मस्जिद अक़सा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमामत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम यहाँ से बाब सोम का सबक नंबर 1 यानी कि मेराज, सफ़र मेराज शुरू करते हैं। बाब सोम का नाम है सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, और उसका सबक नंबर 1 है मेराजुन नबी। इसमें मजमूई तौर पर हमें 5 SLOs दिए गए हैं जिनको हम बारी बारी देखेंगे और इनके मुतालिक जानेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि किताब की सफ़ा नंबर 35 और 36 पर दिया गया मतन आपने पढ़ना है, और इसके बाद हम एक सरगर्मी करते हैं और देखते हैं कि आपने इस मतन को किस हद तक समझा है। हमारा सबक है सफ़र मेराज के बारे में, और सफ़र मेराज के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से को इसरा कहा जाता है और दूसरे हिस्से को मेराज कहा जाता है। अब अगर हम इसरा के माना देखें तो इसरा के माना है रात का सफ़र, और ये वो सफ़र है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल्लाह से मस्जिद अक़सा तक का किया, और ये सफ़र ज़मीनी सफ़र है। अब अगर हम बात करें मेराज की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सफ़र मेराज के 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा इसरा है और दूसरा मेराज। मेराज के माना है बुलंदी, और ये सफ़र है बैतुल मक़दस से अर्श मुअल्ला तक का आसमानी सफ़र, यानी कि जो इसरा है वो ज़मीनी सफ़र है और जो मेराज है वो आसमानी सफ़र है। तो आइए आगे देखते हैं। अज़ीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं कि सफ़र मेराज क्या है? तो आइए सफ़र मेराज के बारे में चंद बातें जानते हैं। हम सब जानते हैं कि कुरैश मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर बेबना जुल्म व सितम ढाए। सफ़र ताइफ का वाक़या भी हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद आमुल हुज़न का वाक़या पेश आया। इस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले चचा हज़रत अबू तालिब और आपकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। इसके बाद अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करने के लिए और ढारस मंदाने के लिए अपने पास मुलाकात के लिए बुलाया, और मुलाकात का ये वाक़या मेराज कहलाता है। हुआ क्या कि एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को जगाया और आपकी सीना मुबारक को ज़मज़म से धोया, और उसके बाद जन्नत से लाए हुए एक जानवर जिसका नाम बुर्राक था उसके ऊपर सवार किया और आपको अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए ले गए। और इस दौरान आपने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत भी करवाई, और उसके बाद आपने अर्श मुअल्ला पर अल्लाह ताला से मुलाकात की। सफ़र मेराज से के मुतालिक मज़ीद मालूमात आपकी किताब में भी दी गई हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम टर्म 1 यूनिट 2 वीक 3 LP नंबर 2 देखते हैं कि इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि बैतुल मामूर, सिदरतुल मुंतहा और अर्श मुअल्ला का मतलब समझ सकें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम मौजज़ा मेराज और इसके असरात से आगाह हो सकें। ये बाब सोम है और इसका सबक नंबर 1 अभी हम कर रहे हैं जिसका नाम है मेराजुन नबी। अभी हमने देखा कि इसमें 5 SLOs है जिसमें से पहले 2 SLOs हम कर चुके हैं। अब हम SLO नंबर 3 से 5 तक देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपकी किताब में कौन सा मतन है। सफ़ा नंबर 37 से आपने मतन पढ़ना है और उसके बाद हम देखेंगे कि आपने इस मतन को किस हद तक समझा है। तो आइए एक सरगर्मी करते हैं। जैसा कि SLO है कि बैतुल मामूर, सिदरतुल मुंतहा और अर्श मुअल्ला का मतलब समझ सकें।
तो बैतुल मामूर क्या है? ये खाना काबा के ऐन ऊपर है। और खाना काबा क्या है? सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में वाक़या अल्लाह ताला का घर, जिसको हम बैतुल्लाह भी कहते हैं। तो बैतुल मामूर खाना काबा के ऐन ऊपर है। जिस तरह ज़मीन पर खाना काबा का तवाफ़ इंसान करते हैं, इसी तरह हर रोज़ 70,000 फ़रिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। और जो फ़रिश्ता एक बार तवाफ़ कर लेता है, उसकी बारी दोबारा नहीं आती। तो अज़ीज़ तलबा, जिस तरह ज़मीन पर अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ किया जाता है, इसी तरह आसमानों पर बैतुल मामूर मौजूद है, जहाँ पर अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ किया जाता है। और वहाँ पर कितने फ़रिश्ते हर रोज़ आते हैं? 70,000 फ़रिश्ते। और देखें हदीस में हमें क्या बताया गया कि जो फ़रिश्ता एक बार तवाफ़ कर लेता है, क़यामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आने वाली। तो अब आप सोचें कि फ़रिश्तों की तादाद कितनी ज़्यादा है। सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा जो हमें हदीस में मालूमात बताई गई, उनके मुताबिक ये एक बेरी का दरख्त है, जिसके बेर दुनिया के बेरों की तरह नहीं है। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसके दरख्त के पत्ते हाथियों के कानों की तरह हैं। हदीस में है कि सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा दरख्त है कि सवार उसकी शाखों के साए में चलता रहेगा 100 साल तक, या इसके साए में बैक वक्त 100 सवार दम ले सकेंगे। इस दरख्त पर सोने की टिड्डियाँ हैं और इसके फल मटकों के बराबर हैं। उसके बाद है अर्श मौला, जहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर गए मेराज के मौका पर। अर्श मौला क्या है? अर्श मौला से मुराद अल्लाह ताला का अर्श है, जो आसमानों से ऊपर है। तो आइए अब देखते हैं कि सफ़र मेराज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम मौजज़ा किस तरह से है। अल्लाह ताला के हुक्म से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से लाए हुए जानवर बुराक पर सवार हुए और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों की सैर के लिए रवाना हुए। अल्लाह ताला की इज़्ज़न से वो वक्त रुक गया और फासले सिमट गए। मज़ाहिर तौर पर यह बात नामुमकिन लगती है कि एक शख्स ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम मौजज़ा है कि आपने अल्लाह के हुक्म से ज़मीन से आसमान का सफ़र तय किया। इसलिए मेराज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम मौजज़ा कहा जाता है। यहाँ पर हमारा सबक सफ़र मेराज मुकम्मल हुआ। अब हम देखते हैं कि इसकी तफ़हीम के लिए कौन से सवालात शामिल किए गए हैं, और ये किताब का सफ़ा नंबर 38 और 39 है। तो कुछ सवालात आपने ख़ुद हल करने हैं, जिनके जवाबात आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं, जैसे कि सवाल नंबर 1 तफसीली जवाब और सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब। कुछ सवालात हम यहाँ पर भी हल करते हैं। तो आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं कि दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्ते ने जगाया। कौन से फ़रिश्ते आए अल्लाह ताला के हुक्म से? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। सफ़र मेराज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। कौन गया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। सफ़र मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी के लिए पेश किया गया। जन्नत से लाए हुए जानवर का क्या नाम था? बताइए। बुर्राक। शाबाश। दाल देखिए, सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है। किस चीज़ का दरख्त है? खजूर का, इंजीर का, बेरी का या जैतून का? बेरी का। बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, खाना काबा के ऐन ऊपर मौजूद है सिदरतुल मुंतहा, अर्श मौला, बैतुल मामूर या जन्नतुल फिरदौस? बैतुल मामूर। बिल्कुल ठीक। और ये वो मकाम है जहाँ पर फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करते हैं। आइए सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 में आपने क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए, तो आपने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की अमामत भी करवाई। और वहाँ पर आपकी मुलाकात किस किस नबी के साथ हुई, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, ये मालूमात आपकी किताब में मौजूद है। आपने उनको अच्छे से दोहराना है और उसकी मदद से आपने ये सवाल मुकम्मल करना है। सरगर्मियाँ देखिए कि सीरत की किसी किताब से सफ़र मेराज का वाक़या तफसील से पढ़ें और अपने दोस्तों को सुनाएं। इसी तरह से बे और जीम भी हल करना है। ये सरगर्मियाँ आप अपने वालिदैन या असातिज़ा कराम की मदद से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबक सफ़र मेराज मुकम्मल हुआ और इसी के साथ हफ़्ता 3 भी मुकम्मल कर लिया। आइए वीक 4 शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन से हासिलात ताल्लुम शामिल किए गए हैं और हम कौन से तसव्वुरात को जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। टर्म 1 यूनिट 2 वीक 4 में बैत अक़बा ऊला और सानिया के बारे में जान सकेंगे, बैत अक़बा की शराइत से आगाह हो सकेंगे और फ़रोग़ इस्लाम में बैत अक़बा के दूरस नताइज को जान सकेंगे। इसके साथ साथ हम कुरान मजीद को हिफ्ज़ करेंगे, जिसमें से हम सूरतुल फ़ातिहा को
मायने और मफ़हूम समेत जानेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरत अल-फातिहा में हमें कौन सी तालीमात दी हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके लिए लेसन प्लान भी दिए गए हैं। असातिज़ा कराम इन लेसन प्लान से रहनुमाई लेते हुए SLOs की बेहतर तौर पर तदरीस कर सकते हैं। टर्म 1 यूनिट 2 वीक 4 LP नंबर 1 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बैत अक़बा ऊला और सानिया के बारे में जान सकें, बैत अक़बा की शराइत से आगाह हो सकें और फ़रोग़ इस्लाम में बैत अक़बा के दूरस नताइज के बारे में जान सकें। तो आइए बाब सोम का सबक नंबर 2 शुरू करते हैं। बाब सोम सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसका सबक नंबर 2 है बैत अक़बा ऊला और सानिया, जिसमें मजमूई तौर पर 3 SLOs दिए गए हैं। आपने क्या करना है कि सफ़ा नंबर 40 और 41 से मतन पढ़ना है और इसके बाद हम सरगर्मी करेंगे और देखेंगे कि आपने इस मतन को किस हद तक समझ लिया है। तो अब आप जल्दी से जाइए और इस मतन को पढ़ लीजिए। तो अज़ीज़ तलबा, आपने मतन पढ़ लिया। क्या आप जानते हैं कि बैत के माना क्या हैं? इसके अलावा बैत अक़बा से क्या मुराद है और बैत अक़बा के मौका पर कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया? तो अक़बा जो है, और इसके तलफ़्फ़ुज़ का आपने ख्याल करना है, इसको आपने उक़बा नहीं पढ़ना, ये अक़बा है। आइन पर भी ज़बर है, क़ाफ़ पर भी ज़बर है और बा पर भी ज़बर है। अक़बा अक़बा क्या है? अक़बा जो है वो घाटी को कहते हैं या पहाड़ी तंग गुज़रगाह को। जब आप मक्का से मिना जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक तंग गुज़रगाह आती है जिसको अक़बा के नाम से याद किया जाता है। और ये बैत क्योंकि इस मकाम पर हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को दावत देते जो हज के लिए आते थे। तो इस मौका पर जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, तो इस वजह से इसको बैत अक़बा कहा जाता है। और पहली बैत अक़बा के मौका पर कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया? इस मौका पर 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो आइए आगे देखते हैं। टर्म 1 यूनिट 2 वीक 4 LP नंबर 2 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि बैत अक़बा ऊला सानिया के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया। और अब हम देखेंगे कि फ़रोग़ इस्लाम में बैत अक़बा के क्या नताइज मुरतब हुए या कौन से नताइज हासिल हुए। तो किताब के सफ़ा नंबर 41 से आपने ये मतन पढ़ना है और बैत अक़बा सानिया के मुतल्लिक़ भी मालूमात हासिल करनी है। और यहाँ पर आप देखें कि वो बातें भी लिखी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत करने वाले लोगों से अहद व पैमान की सूरत में लेते। वो बातें क्या हैं कि वो नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, अल्लाह ताला की राह में उठ खड़े होंगे और किसी भी मामले में तानो तशनी को खातिर में नहीं लाएंगे। यानी कि दावत दीन के मामले में अगर उनको तानो तशनी का सामना करना पड़ता है तो इसकी वजह से वो दावत व तबलीग का काम नहीं रोकेंगे। इसके साथ जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाएंगे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आपने यहाँ से मतन पढ़ना है और इसके बाद हम देखते हैं, एक सरगर्मी करते हैं और देखते हैं कि आपने मतन को किस हद तक समझ लिया है। बैत अक़बा ऊला और सानिया के अहम नकात और नताइज। इस सरगर्मी को हल करने के लिए आपने क्या करना है कि वो सबक जो आपने अपनी किताब से पढ़ लिया उसमें से अहम नकात को अख़ज़ करना है और उन नकात को आपने अपनी कॉपी पर तहरीर करना है। और अगर नताइज की बात की जाए तो बैत अक़बा ऊला और सानिया के दूरस नताइज मुरतब हुए और इन्होंने दावत दीन की तबलीग में अहम किरदार अदा किया और ये बैत एक संगे मील की हैसियत रखती है इस्लाम की दावत व तबलीग में। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अब हम देखेंगे कि हमारी किताब में इस सबक से मुतल्लिका कौन से सवालात शामिल किए गए हैं ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि आपने सफ़ा नंबर 40 और 41 पर दिए हुए मतन को किस हद तक समझा है। किताब की सफ़ा नंबर 42 और 43 पर सवालात दिए गए हैं। इसमें से सवाल नंबर 1 तफसीली जवाब लिखें, ये आप अपनी कॉपी पर हल करेंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब लिखें, इनके जवाबात भी आप अपनी कॉपी पर तहरीर करें। कुछ सवालात अभी हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, जैसे कि सवाल नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं कि सवाल नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाए। नबूवत के 11वें साल यसरब के लोग ईमान लाए। कितने लोग ईमान लाए थे? 12। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबल्लिग बनाकर यसरब भेजा। किसको रवाना किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। जीम देखिए, बैत अक़बा ऊला हुई नबूवत के 10वें साल, नबूवत के 11वें साल, 12वें साल या नबूवत के 13वें साल। तो ये हुई नबूवत के 12वें साल। दाल देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की दरख्वास्त पर नकीब मुकर्रर फरमाए। कितने? 12। और यसरब के 75 लोगों ने अक़बा के मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद व पैमान किया।
ये किस साल के मौका पर हुआ ईद पैमान? नबूवत के 13वें साल पर। तो अज़ीज़ तलबा, इसी के साथ कुछ सरगर्मियाँ भी दी गई हैं जो आपने अपने वालिदैन या असातिज़ा कराम की मदद से हल करनी है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अब हम देखते हैं टर्म 1 यूनिट 2 वीक 4 का LP नंबर 3 और टर्म 1 यूनिट 2 वीक 5 का LP नंबर 1 और 2 में हम सूरतुल फातिहा हिफ्ज़ करेंगे। वीडियो के तसलसल को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर हम इकट्ठे ही सूरतुल फातिहा हिफ्ज़ करेंगे, जबकि बच्चों की आसानी के लिए सूरतुल फातिहा हिफ्ज़ करने के लिए 3 LPs मुख्तस किए गए हैं। वीक 4 का LP नंबर 3 और वीक 5 का LP नंबर 1 और 2। तो आइए अब हम बाब अव्वल का हिस्सा जीम यानी कि हिफ्ज़ व तर्जुमा शुरू करते हैं। बाब अव्वल है कुरान मजीद व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, और इसका हिस्सा जीम है हिफ्ज़ व तर्जुमा। यहाँ पर 3 ऐसे लफ्ज़ दिए गए हैं और आपके सबक में सूरतुल फातिहा शामिल है, अत्तहियात शामिल है और दरूद इब्राहिमी और दुआए कनूत शामिल है। टर्म 1 यूनिट 2 में हम सूरतुल फातिहा को मायनी मफ़हूम और तर्जुमा के साथ याद करेंगे। तो आइए एक सरगर्मी करते हैं और सूरतुल फातिहा के बारे में चंद मालूमात जानते हैं। सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है। ये एक रकू पर मुश्तमिल है और इसमें 7 आयात हैं और इसको नूर कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर अता किए गए, जिसमें सूरह बकरा की आखिरी आयात और सूरतुल फातिहा शामिल है। और इसकी वजह तस्मिया क्या है, क्यों उसको फातिहा कहते हैं? आप जानते हैं कि सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है और फातिहा के मायनी है खोलने वाली, और क्योंकि यहाँ से कुरान मजीद का आगाज़ होता है इसलिए इसको अल-फातिहा यानी कि खोलने वाली कहा जाता है। तो आइए अब हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा जानते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। तर्जुमा देखिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं जो सारी कायनात का रब है, बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधी राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों की राह जिनसे तू नाराज़ हुआ और जो गुमराह हुए। अज़ीज़ तलबा, अभी आपने सूरतुल फातिहा की तिलावत सुनी और उसका तर्जुमा देखा। अब आपने क्या करना है, सूरतुल फातिहा को नमाज में पढ़ना है और तर्जुमा याद करना है। क्या आप जानते हैं कि सूरतुल फातिहा को पढ़े बग़ैर नमाज मुकम्मल नहीं होती? ये कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जो हर नमाज की हर रकअत में पढ़ी जाती है। इसके और भी नाम है, इसको सबा मसानी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको पढ़ने की बहुत फजीलत है। तो अब आपने इस सूरत को अच्छे से याद करना है। यहाँ पर हमारा वीक 4 मुकम्मल हुआ। अब हम वीक 5 की तरफ बढ़े हैं और वीक 5 में हम देखेंगे कि कौन से तसव्वुरात और हासिलात ताल्लुम शामिल किए गए हैं। टर्म 1 यूनिट 2 वीक 5 है और इसके LP नंबर 1 और LP 2 को सूरतुल फातिहा के लिए रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों की आसानी के लिए सूरतुल फातिहा के लिए 3 लेसन प्लान्स रखे गए हैं। टर्म 1 यूनिट 2 वीक 5 के LP नंबर 3 में आप दोहराई करेंगे उन असबाक की जिनको आपने टर्म 1 यूनिट 2 में पढ़ लिया। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से असबाक शामिल किए गए थे जिनकी हमने लेसन प्लान नंबर 3 में दोहराई करनी है। देखिए, इसके लिए लेसन प्लान्स भी आपको दिए गए हैं। सूरतुल फातिहा के भी 3 लेसन प्लान्स दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं और इससे मदद ले सकते हैं। इसके साथ दोहराई के लिए भी लेसन प्लान दिया गया है और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड की गई हैं। पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि हमने टर्म 1 यूनिट 2 वीक 5 में के LP नंबर 3 में, जैसे कि पहले हम देख चुके हैं कि टर्म 1 यूनिट 2 मुश्तमिल है इन असबाक पर। अब आपने टर्म 1 यूनिट 2 के वीक 5 के LP नंबर 3 में इन असबाक की दोहराई करनी है। इसके लिए लेसन प्लान भी दिया गया है और अगर आप देखें तो आपको एक वर्कशीट्स भी दी गई हैं जिसकी मदद से आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि आपने इन तसव्वुरात को किस हद तक समझ लिया है। और इसके बाद आपने वीक 6 में टर्म 1 यूनिट 2 के लिए असेसमेंट भी तैयार करनी है
تاکہ تصورات کی بہتر طور پر جانچ کی جا سکے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آفاق سن سیریز اسلامیات جماعت پنجم کے ٹرم 1 یونٹ 2 کے بارے میں پڑھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام تصورات کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ میری ملاقات اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔